We'll start the revision of this link state routing algorithm. Actually, we have already conducted this class for the link state routing and Dijkstra algorithm also. But one revision over the Dijkstra algorithm remains. So I will complete this Dijkstra algorithm today. So in Dijkstra algorithm, actually, if you see the different things related with the Dijkstra algorithm, uh, so it will use for the shortest path, and it belongs to the link state routing. After that, path vector and then REAP and OSPF will conclude maybe today or actually I think tomorrow it is not possible due to some another pending task. So if you see the scenario of any network, at that time you can see there are a number of routers as a node present in the network, and every node have its own routing table. So same routing table is available in a different on a different nodes. So if you see this particular figure, it is there are 5 nodes, and each node use the same topology to create the routing table. So routing table will be created by each node, but the routing table for each node is unique. A separate routing table for every node, that based on the different interpretations of that used topology. It is just like a city map. जैसा हमारा सिटी होता है उसका मैप जो है, जब हम डेस्टिनेशन ढूंढते हैं तो ये सिटी का मैप जैसा है एक नोड सपोज. अब यहाँ पर एग्जांपल अगर हम ले, दो अलग अलग सिटीज है, दो अलग अलग पर्सन्स है, और दोनों पर्सन सेम मैप यूज कर रहे हैं. तो सेम मैप हम यूज करते हैं, दो अलग अलग यूजर्स, दो पर्सन इन टू डिफरेंट सिटीज, but they need to take different route to reach their destinations. So at that time they can prefer their own way, their own path. तो ये अलग अलग पाथ यहाँ पे यूज हो सकता है. जैसा कि यहाँ पे एक सिटी है ए और दूसरा सिटी है बी, तो ये दो बी, ए एंड बी, these two different cities have the same map. The person uses a city's map, and another person uses b city's map. They can reach to their destination with a different path. That depends on the which path is suitable for him or her. So this particular topology must be dynamic. That means representing the latest situation of each node on each link. अगर लिंक यहाँ पे एक चेंज होता है, एक कोई पॉइंट चेंज होता है नेटवर्क में, तो दैट अफेक्ट्स ऑन डिफरेंट नोड आल्सो. So that particular topology must update for each node. थोड़ा सा वो ये बदल हो गया वहां पे, तो चेंज तो करना बनता है वहां पे. तो ये इसलिए हम कहते हैं इसको डायनामिक टोपोलॉजी. तो ये डायनामिक होता है, और जनरली ये डायनामिक भी होता है. सो यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन सिचुएटेड इन डिफरेंट सिटीज, they can prefer the different path. तो ये यहाँ पे अगर एक में जो ए सिटी में जो एक पर्सन है वो ई को जाना चाहता है, तो शायद हो सकता है वो बी को विजिट करे और बी से ई को विजिट करे. बी का जो पर्सन है वो सेम मैप यूज कर रहा है, लेकिन पाथ अलग यूज कर सकता है. बी टू सी जाएगा, सी टू ई जाएगा. तो ये ऐसा पॉसिबिलिटी होती है. जैसा कि यहाँ पे है ए का स्टेट ऑफ लिंक्स कौन से है, तो यहाँ पे जाने वाला 5, 2 एंड 3. ये हमने पिछली बार देखा था ये सारी चीजें कि बी का लिंक स्टेट कैसा होगा, इसका लिंक स्टेट कैसा होगा. तो ये बिल्डिंग अगर हमें राउटिंग टेबल बिल्ड करना है यहाँ पे,
So then we can use LSP. So that means that link state पैकेट. अभी ये लिंक स्टेट पैकेट जो है, तो ये लिंक स्टेट पैकेट यहाँ पे यूज होगा whenever that it creates the particular path, and after that that particular LSP will be disseminated to every other routers. That is called as flooding. तो ये सारे LSP जो है, हर एक नोड, हर एक राउटर ये अपने अपने नेबर नोड को ये सेंड कर देते हैं. उसको डेसिमिनेशन जब होता है तब हम कहते हैं उसको फ्लडिंग. सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लडिंग. सो द थर्ड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ ट्री. तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्री यहाँ पे हर एक नोड के लिए फॉर्म हो जाता है. So calculation of routing table based on shorting, that is that based on the shortest path. तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमने पहले देखा था. तो हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी. दैट इज डायस्ट्रा एल्गोरिथम. वो भी हमने देखा था, लेकिन एक एक स्टेप अगर हम देखें इसमें, तो पहले तो LSP क्रिएट होगा और ये LSP हर एक नोड को सेंड किया जाएगा. एंड उसके बाद ये फ्लडिंग, हम उसे कहेंगे फ्लडिंग. जब सेंड होता है तब फ्लडिंग करते हैं, फ्लडिंग कहते हैं. सो द क्रिएटिंग नोड्स सेंड्स अ कॉपी ऑफ द LSP आउट ऑफ ईच इंटरफेस. और दूसरा स्टेप होता है यहाँ पे नोड दैट रिसीव्स LSP. एक नोड को अगर LSP मिल गया तो ये जो LSP मिला है उसका ओल्ड LSP कैसा है, अगर वो ओल्ड LSP मॉडिफाइड नहीं है, न्यू LSP उसको मिला है, सो दैट इज मतलब उसका जो पहला वाला जो LSP था ओल्डर था एज कंपेयर टू द न्यूली अराइव्ड LSP, देन वो क्या करेगा, फिर यहाँ पे ओल्ड LSP को डिस्कार्ड कर देगा और नया LSP वो रख लेगा. इसका मतलब नया LSP में क्या है, नोड के इंफॉर्मेशन वहां पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी. और उसके बाद जो ओल्ड तो गया, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, लेकिन जो नया LSP है ये क्या होगा, इट सेंड्स अ कॉपी ऑफ इट आउट ऑफ ईच इंटरफेस एक्सेप्ट द वन फ्रॉम विच द पैकेट अराइव्ड. जहां से पैकेट अराइव है उसको तो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से ही तो उसने रिसीव किया है, तो वहां पे देने की जरूरत नहीं है. लेकिन बाकी के जो नेबर नोड हैं उनको ये LSP सेंड कर देगा, इसलिए कि वहां पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन उस LSP में होगी. सो दिस इज नथिंग बट अ फ्लडिंग. अब इसके बाद फ्लडिंग के बाद अगर हम देखें, इसको पहले मैं मिटा दूं. फ्लडिंग के बाद थर्ड स्टेप आती है एल्गोरिथम, दैट इज डायस्ट्रा एल्गोरिथम. तो इसमें तो दो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है. पहला तो इनिशियलाइजेशन है, आपको पता है जो हमने बेलमन फोर्ड में देखा था, सेम वैसा ही है. और इटरेशंस, इसमें सेम n-1 इटरेशन. तो ये तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ही करेंगे, चाहे वो बेलमन फोर्ड हो या फिर चाहे वो डायस्ट्रा एल्गोरिथम हो. पहला इनिशियलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि अगर ये नोड 0 है, एक नोड है, यहाँ पे A नोड है, यहाँ पे B नोड है और यहाँ पे C नोड है. ये जो A नोड है इसका A to A इसकी वैल्यू 0 होगी. ये पाथ है, सपोज ऐसे पाथ है, तो यहाँ पे इसका 2 दिया है ऑटोमेटिकली. और यहाँ पे सॉरी, इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये इस चीज का ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये नहीं होगा. सपोज मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, अगर ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, सपोज A का ABC नोड है, तो ये A को पता है B, क्योंकि LSP B ने इसको ये A को दिया है, लेकिन C ने B को अभी नहीं दिया है सपोज, तो डेफिनेटली इट इज इंफिनिटी. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, लेकिन इसकी वैल्यू इंफिनिटी होगी. दिस इज नथिंग बट ए इनिशियलाइजेशन प्रोसेस. तो ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर पहले होगी. अब इनिशियलाइजेशन प्रोसेस के बाद बारी आती है इटरेशंस की. इटरेशन होता है n-1 नंबर ऑफ नोड्स अवेलेबल. नंबर ऑफ नोड कितने अवेलेबल है, उस -1 उतने इटरेशन. पहला जो होगा दैट इज इनिशियलाइजेशन. इटरेशन में हम काउंट नहीं करते उसको,
अब यहाँ पर इटरेशन में कैसे परफॉर्म होगा? एडिंग द नेक्स्ट नोड टू द पाथ। पहला स्टेप तो ये है, एडिंग द नेक्स्ट नोड टू द पाथ। जो भी पाथ होगा उसके अंदर इसको ग्राफ में, ट्री में, सॉरी नॉट ग्राफ, ट्री विल add that particular node. Search the node that the nodes not in the path. जो पाथ में नोड नहीं है उनको सर्च करो और मिनिमम पाथ सिलेक्ट करो। जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ है उसको हम ऐड कर देंगे। और दूसरा स्टेप क्या है? अपडेट कर लेना उसका कॉस्ट। तो ये कॉस्ट अपडेट करना है, फिर से यहाँ पे जाना है और ये लूप में चलाएगा जब तक कि पूरे नोड विजिट ना हो जाए। तो ये दो ही स्टेप्स है इसके अंदर, चाहे बेलमन फोर्ड हो या चाहे डायस्ट्रा एल्गोरिथम हो। तो ये डायस्ट्रा एल्गोरिथम हम यहाँ पे अभी नेक्स्ट डायस्ट्रा एल्गोरिथम लेंगे। हमने ये भी देखा था इनिशियलाइजेशन प्रोसेस और इटरेशंस, ये दो स्टेप्स होती हैं डायस्ट्रा एल्गोरिथम में या फिर बेलमन फोर्ड में भी सेम। तो पहले क्या है इसमें? ट्री इज इक्वल टू रूट। सो ट्री इज मेड ओनली ऑफ रूट। सिर्फ रूट से ही एक ट्री बनेगा। पहले शुरू में रूट है, सपोज ए इज द रूट। फॉर y इक्वल टू 1 टू n, n इज क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ नोड्स। तो नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे अवेलेबल जितने भी हैं ये यहाँ पे हो सकते हैं। b है, c है, d है, नंबर ऑफ नोड्स। तो पहले तो ये रूट नोड हम यहाँ पे देखेंगे। इसको ये है अभी रूट नोड। ये रूट नोड हो गया। इफ y इज द रूट नोड, अभी ये सपोज ये y है, इफ ये y क्या है? एक रूट नोड है, तो इसका डिस्टेंस तो 0 आएगा ही आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम रूट टू नोड y। ये अगर y ये रूट है तो इसका तो ये 0 आएगा। अगर नहीं है, y क्या है फिर यहाँ पे? सपोज y ये कुछ अलग है, सपोज y ये है, b है, तो क्या होगा? ये नेबर है इसका। सो डिस्टेंस ऑफ y इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रूट 0 प्लस y। तो ये होगा यहाँ पे। अगर नहीं है, अब यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पर c की वैल्यू क्या क्या आएगी यहाँ पे? एल्स ये भी y है, डिस्टेंस ऑफ a टू c इज इंफिनिटी। यहाँ पे कुछ होगी इसकी वैल्यू, सपोज यहाँ पे 2 है तो ये 2 बनेगा, यहाँ पे 3 है तो ये 3 बनेगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, अपडेट नहीं है। a टू c ये क्या है? इंफिनिटी है। तो दिस इज नथिंग बट अ इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। दिस इज इनिशियलाइजेशन। उसके बाद आएगा इटरेशंस। तो इटरेशन तो हमें रिपीट करना पड़ेगा। इसमें फाइंड नोड u विथ dw मिनिमम अमाउंट ऑल नोड्स नॉट इन द ट्री। तो ऐड करना पड़ेगा, जैसे जो मिनिमम पाथ वाला नोड हम ट्री में ऐड करते जाएंगे और इसको अपडेट भी करते जाएंगे। तो इसमें मेन चीज ये है कि हमें ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है और यही याद हमें रखना है यहाँ पे अभी। डिस्टेंस ऑफ v इक्वल टू मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ v एंड डिस्टेंस ऑफ u प्लस कॉस्ट ऑफ uv। ये इंपॉर्टेंट है। हम कंपेयर करेंगे मिनिमम इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, dv में और dvu प्लस कॉस्ट ऑफ uv, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। जो भी मिनिमम होगा वो पाथ हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। सो दिस इज डायस्ट्रा एल्गोरिथम। सो लेट अस चेक फॉर द ग्राफ। अभी यहाँ पर एक टोपोलॉजी दी है a b c d e f एंड g। तो यहाँ पर हमें पहला स्टेप क्या है? टू शो द ट्री क्रिएटेड बाय नोड a। यहाँ पे नोड a से क्रिएट हुआ है। We need to go through initialization steps and 6 iterations to find the shortest tree। यहाँ पे 7 नोड्स है लेकिन हमें n-1 इटरेशन करने हैं, तो 6 इटरेशन यहाँ पे बनेंगे। पहला इनिशियलाइजेशन होगा और बाकी 6 क्या रहेंगे? इटरेशंस रहेंगे। अब इनिशियलाइजेशन स्टेप में क्या होता है? यहाँ पे इनिशियलाइजेशन स्टेप में
नोड ए सिलेक्ट इटसेल्फ एज अ रूट, ये क्या बनेगा अभी यहाँ पे देखिए, ये क्या है, यहाँ पे रूट सिलेक्ट किया है, इट इज सिलेक्टेड एज रूट। पहला तो ये प्रोसेस है। इट देन असाइंस शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस टू ईच नोड ऑन द टोपोलॉजी। तो ए से बी को कनेक्ट है, ए से डी को कनेक्ट है, और ए से किसी और को कनेक्ट नहीं है, जैसा सी ई एफ जी, इनको ये कनेक्टेड नहीं है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी। और बाकी यहाँ पे दो है, तो 0+2 कौन सा इसमें मिनिमम है, तो 2 इन मिनिमम है, तो यहाँ पे 2 रख दिया। यहाँ पे 3 है, 0+3, यहाँ पे 3 रख दिया क्योंकि मिनिमम है वो। तो ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो गई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इटरेशंस परफॉर्म होंगे। So it then assigns the shortest path distance to each node on the topology. The node that are not neighbor of A receives the shortest path distance value of infinity. बाकी के सारे क्या हैं यहाँ पे, infinity है. So this process is initialization process. Okay. So let us see this one. एक सेम यही एग्जांपल हम लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, और यहाँ पर विजिटेड नोड ए है। कैसे विजिटेड नोड है, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में देखिए कि यहाँ पर ए टू ए कितना डिस्टेंस है, 0 है, ए टू ए डिस्टेंस 0 है। और इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में शुरू में एक्चुअली यहाँ पर इंफिनिटी 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 इंफिनिटी, तो इसमें हमें सबसे कम कौन सा है वैल्यू वाला, ए है, तो इसको पहले सिलेक्ट कर लो। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। कैसे निकालेंगे हम न्यू डेस्टिनेशन, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला जो पहले हमने जो फॉर्मूला लिया था, ये वाला फॉर्मूला जो लिया था, सेम वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। मिनिमम ऑफ ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कौन सी है, 0 है। विजिटेड या फिर मार्क प्लस वेट, तो यहाँ पे तो इनिशियली 0 ही है। अब यहाँ पे यहाँ से अगर हम देखें, हम यहाँ पे कि ए टू बी है और ए टू डी है, ए टू बी और ए टू डी है, तो डेस्टिनेशन, नेक्स्ट में ही जाएंगे, अभी ये काम में आएगा हमें अभी, बस ये वाला। सो न्यू डेस्टिनेशन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ओल्ड डेस्टिनेशन विजिटेड प्लस वेट। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि न्यू डेस्टिनेशन ए टू बी, अब ए टू बी अगर हम देखें तो ए टू बी कितना है, यहाँ पे 2 है, और ए टू डी ये कितना है, 3 है। कैसे, यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये 3 है, ये 3 है और ये 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 और ये 3, यहाँ पर ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। और बाकी के क्या है, ए टू सी क्या है, इंफिनिटी, बाकी सारे इंफिनिटी रहेंगे। अब इसमें हम मिनिमम देखेंगे, दोनों में से मिनिमम कैसे, डेस्टिनेशन वैल्यू इक्वल टू मिनिमम ऑफ ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू। ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कितनी थी इसकी, इंफिनिटी। इसकी ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कितनी थी, इंफिनिटी। एंड विजिटेड मतलब हमने कौन सा विजिट किया, ये ऑरेंज को दिया मैंने, ए को विजिट किया है, ए दैट इज 0 प्लस इसके ऊपर वेट कितना था, 2। यहाँ पे हम लिखते हैं मिनिमम ऑफ ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कितनी है, इस बी की, हम बी की बात करें, इंफिनिटी है। एंड विजिटेड इसका क्या है, 0 प्लस इसके ऊपर वेट कितना था, वेट कितना, 2 कितना आया यहाँ पे, 2। मिनिमम क्या है, इंफिनिटी एंड 2 के बीच में कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मिनिमम जो रहेगा हम उसको वहां पे पुट कर देंगे। अब यहाँ तो विजिट
यहाँ पे हम बी लिखेंगे, बी, यहाँ पे बी है, बी टू ए, ये तो विजिटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अभी ये विजिटेड है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, डैश करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी विजिटेड है, हमने उसको राउंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद ए टू बी कितना आया डिस्टेंस, 2, हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ए टू सी कितना आएगा यहाँ पे, यस डेफिनेटली इट इज इंफिनिटी, ए टू सी इंफिनिटी आएगा। ए टू डी, अभी ए टू डी निकालना है हमें, क्योंकि ए टू डी डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल है। अब ए टू डी के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ ओल्ड वैल्यू, ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कितना था इसका, इंफिनिटी था, इंफिनिटी, हम इसको इंफिनिटी काट के ही 3 बनाया था, इंफिनिटी काट के ही इसको 2 बनाया था, तो ओल्ड वैल्यू कितनी थी इसकी, इंफिनिटी, एंड विजिटेड क्या है, 0, ये 0 है, और इसके ऊपर कितना है, वेट 3 है, +3 इक्वल टू, इसमें से कौन सा मिनिमम है, इंफिनिटी है या 3 है, तो 3 मिनिमम है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 3, और ई और बाकी के तो की हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, तो ये क्या होगा यहाँ पे, इंफिनिटी, हम इसको थोड़ा सा मिटा देंगे, ओके। अभी सेम हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। अब इसमें हमें देखना है कि विच इज मिनिमम, इसमें से कौन सा मिनिमम है, ऑब्वियसली इट इज 2 इज द मिनिमम। अब ये 2 है, तो किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू, हमने बी पहले ही पुट कर दिया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अभी कि वी विजिटेड बी, वी विजिटेड बी, बी को हमने विजिट कर लिया। अब बी को विजिट कर लिया, तो मैं इसको मार्क कर देता हूं कि हमने इसको विजिट कर दिया है, इसको हम अभी नेक्स्ट इसमें हम लेंगे नहीं, ओके। नेक्स्ट अभी बी से क्या क्या विजिट हो सकता है, बी से हो सकता है ई को, बी को हो सकता है सी को, बी टू ए, अब ए तो यहाँ पे हम डैश रखेंगे, ये भी डैश रखेंगे, बी टू बी, बिकॉज इट इज विजिटेड, जब विजिट होता है हमें उसको फिर से एक बार विजिट करने की जरूरत होती नहीं है। अब बचे दो ही हैं, सी और ई, एफ एंड जी, एफ एंड जी कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, तो यहाँ पर बी टू सी कितना है, बी टू सी कितना है, 5 है, यहाँ पे 5 है, और ये 4 है, ये तो 3 था और ये 2 था, ओके। अब यहाँ पर हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, मिनिमम ऑफ ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू, सी को हम यूज करें, तो क्या है इसकी वैल्यू, इंफिनिटी, एंड विजिटेड कौन सा है, बी, इसकी वैल्यू कितनी है, 2, प्लस यहाँ पे क्या है, 5, ये है इंफिनिटी एंड 7, इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है सी की, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7, तो सी कितना है, 7, ठीक है, 7 यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ पे मिनिमम नहीं रहा, ये इसको मिटा देंगे हम, नहीं मिटेगा वो, ठीक है, इसको हम काट देंगे, और ये 7 बनेगा अभी, सेम फॉर दिस ऑल्सो, सेम फॉर ई ऑल्सो, डी का तो कोई जरूरत नहीं है, डी एक्चुअली एज इट इज हम नीचे उसको ले लेंगे, क्योंकि डायरेक्टली बी टू डी कनेक्टेड नहीं है, तो ये एज इट इज इसको
नीचे ले लेंगे। बचा क्या है अभी? ई, बी टू ई। अब बी टू ई कितना है, तो कैसे निकालेंगे हम? फॉर्मूला सेम, मिनिमम ऑफ ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू। ई की ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रख दिया हमने। विजिटेड, विजिटेड कौन सा है? बी, बी का वैल्यू कितना है? 2 प्लस वेट कितना है इसके ऊपर? 4, कितना हुआ? 6। तो यहां पर ये इसकी वैल्यू कितनी बनती है? 6। अब देखिए इसमें से मिनिमम कौन सा है? 7, 3, 6, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो 3 इज द मिनिमम वैल्यू। और ये किसको बिलोंग करता है? ये डी को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम डी को पुट करेंगे। so this is also visited now। अब ये विजिट हुआ है डी, तो इसको हम अभी कर देंगे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पर ये हुआ डी। अब डी किसे कनेक्टेड है? डी किसे किसे कनेक्टेड है? डी सिर्फ एक ही, सॉरी, ये इससे ही कनेक्टेड है। तो यहां पर कितनी वैल्यू है? A2 ये डैश है, बी ऑलरेडी विजिटेड है, डी ऑल्सो विजिटेड, D2 ई आएगा, और D2 F, और ये बाकी सी तो नहीं आएगा कुछ। इसकी वैल्यू भी 7 ही आएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी आएगा। हमें D2E लेना है, D2E। यहाँ पर क्या होगा फिर? अभी D2E, इसको हम मिटा देंगे। देखिए अभी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है, और विजिटेड कौन सा है? डी है, 3 प्लस इसके ऊपर वेट कितना है? वेट 5 है, ये 5, ये है 8 एक्चुअली। अब 8 यहाँ पर 8 मैक्सिमम हो गया, लेकिन पहले क्या था इसमें? इसमें 6 था पहले। ई की वैल्यू क्या थी? 6 थी। ई की वैल्यू 6 थी इसके पहले, ये वाली हमने यहाँ पे लिखा नहीं एक्चुअली, ये 6 थी। तो 6 और 8 में से 6 ये मिनिमम है, तो हम इसको ही सिलेक्ट करेंगे। और इनमें से मिनिमम कौन सा है? 6 है। और ये किसको बिलोंग करता है? ई को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। अभी इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ओके, अभी कितना, अभी कौन सा बचा है इसमें? आ, फिर से एक बार हम देखें यहाँ पे, तो ये विजिटेड है, विजिटेड है, विजिटेड है, विजिटेड है। सी, यहाँ पे E2C, E2F, E2G, ई को हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। विजिट कर दिया हमने इसको। अब यहाँ पर इसको विजिट किया है, तो ई का कनेक्शन किसके साथ में है? बी के साथ में ऑलरेडी कनेक्ट, ऑलरेडी है वो। और यहाँ पर 6, इसका कितना है? 2 है। ओके, एफ, अब यहाँ पे सिर्फ एफ आएगा, जी तो इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि ये अभी भी दूर है इससे, ई से दूर है अभी। अभी यहाँ पर एफ लेंगे हम। अब यहाँ पे एफ जब लेंगे, सॉरी यहाँ पे, तो इसकी इनिशियल, इसका ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू क्या है? एफ का इन्फिनिटी है, और विजिटेड क्या है? ई है। ई के वैल्यू कितने हैं? 6 है, प्लस 2, यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। एफ कितना आएगा यहाँ पे? 8 आएगा। तो इसको मैं काट देता हूँ और यहाँ पे 8 लिख देता हूँ। हो गया। अभी इसमें सी को कर सकता है क्या ये? नहीं, ऑलरेडी सी की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो 7 रख दो यहाँ पे, ठीक है ना। 7 रख दिया हमने। अब मिनिमम देखिए इसमें से कौन सा है? ऑब्वियसली इट इज द मिनिमम, और ये किसका है? सी का है।
तो इसका मतलब ये है कि सी को हमने अभी विजिट करना है या फिर हम कर चुके हैं विजिट। तो सी को विजिट जब करते हैं हम यहाँ पे सी को विजिट करते हैं तो सी का पाथ कौन सा है, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे ये 3 एंड 4 ये विजिटेड है, तो इसका कोई हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये विजिटेड है, ये विजिटेड है, विजिटेड विजिटेड विजिटेड। एफ भी विजिटेड है, उसके लिए यहाँ पर क्या जाएगा अभी, जी। अभी क्या है, जी है। अब यहाँ पर ये सी, सॉरी C2, इसमें से एफ कितना है, एफ 8 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 7 + 4 11, तो ये 8 इज लेस, तो यहाँ पर हम 8 ही लेंगे। और बचा है यहाँ पे 7, C7 है और इसका लिंक है 3। अब यहाँ पे हम मिनिमम लेंगे। अब मिनिमम जब लेते हैं हम यहाँ पे, तो फिर से एक बार हम क्या करेंगे, ओल्ड वैल्यू क्या है इसकी, इन्फिनिटी है। और उसके बाद विजिटेड कौन सा है, सी है, सी को ही हम कर रहे हैं। 7 प्लस वेट कितना है, 3 है, और इसका वैल्यू कितना बनता है यहाँ पे, 10, 10 है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, 10, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10। अब दोनों में से कौन सा मिनिमम है, दोनों में से मिनिमम है यहाँ पे 8। तो 8 किसको बिलोंग करता है, एफ, तो हम इसको यहाँ पे एफ लेंगे। अब एफ को विजिट करना है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे सिलेक्ट किया, विजिट किया एफ को। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये भी सॉलिड बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम बाद में देखेंगे उसको, अभी फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं है। एफ, एफ किसको किसको कनेक्टेड है, सी को कनेक्टेड है, विजिटेड है। तो ये विजिटेड है, विजिटेड है, विजिटेड 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 से जी बचा है यहाँ पे, जी बचा है यहाँ पे। और जी का कितना है, 1, जी का क्या है, 1 है यहाँ पे। यही डायग्राम है, मैं इसको ही देखकर कर रहा हूँ अभी, यही हमने एग्जांपल लिया है। तो 1 है। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम निकालना है हमें, बाकी तो कोई जरूरत नहीं है निकालने की, बाकी सब विजिटेड है। इसकी ओल्ड वैल्यू कितनी थी, 10। अब मिनिमम नहीं, इन्फिनिटी नहीं, तो 10 थी यहाँ पे, इसकी कितने 10। विजिटेड कौन सा है, एफ, एफ विजिटेड है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1, सॉरी 8, और वेट कितना है इसके ऊपर, 1, और कितना बनता है ये फिर अभी, 9, 9। तो इसको हम निकाल देंगे और यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है, तो 10 और 9, इसमें से मिनिमम कौन सा है, ऑब्वियसली 9 है, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। और ये किसको विजिट किया था हमने, जी को विजिट किया था। ये पूरा बन गया हमारा टेबल। अब ये टेबल बनने के बाद, अब इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, तो आगे की चीज हम यहाँ पे प्रॉपरली करेंगे। अब ये हो गया। अब इसके बाद हमें लेना है एक पॉइंटर। अब पॉइंटर लेना है और पुट करना है हमें पॉइंटर कहाँ पे, हमने यहाँ पे पॉइंटर पुट किया। ठीक है, लास्ट में जो होता है, इसको भी मैं राउंड कर देता हूँ ना, ओके। यहाँ पर मैंने पॉइंटर पुट किया। अब पॉइंटर पुट करने के बाद हमें ऊपर की तरफ जाना है। नेक्स्ट, अगर चेंज होता है 9 to 10, यस इट इज चेंज, तो फिर लेफ्ट साइड में जाओ। 8, अब इसके आगे कोई पीछे कोई है लेफ्ट साइड में, नहीं, गो टू अपवर्ड। चेंज है क्या, 8 to 8, नो चेंज, देन गो टू अपवर्ड साइड में जाना है। उसके बाद यहाँ पे 8 to इन्फिनिटी चेंज हुआ, तो यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा 6।
अब यहाँ पे मिनिमम है 6, फिर ऊपर जाइए। अब मिनिमम मिल गया हमें, तो वापिस लेफ्ट साइड में जाने की जरूरत नहीं है, अपवर्ड साइड में जाइए। 6 to 6 नो चेंज, तो यहाँ पे जाइए आप। चेंज अगर होता है तो ही लेफ्ट साइड में जाइए, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपवर्ड साइड में जाना है। अब यहाँ पर ये पॉइंटर जाएगा। अब ये इसको मैं, इस पॉइंटर को मैं मिटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं अभी। 6 to इंफिनिटी चेंज हो गया, तो लेफ्ट साइड में जाइए, 2 आया यहाँ पे। अब 2 से फिर अपवर्ड साइड में जाइए। यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हुआ है 2 से इंफिनिटी, और ये जाइए। अब देखिए कहाँ कहाँ चेंज हुआ है, जहां जहां चेंज हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या है, पहले तो जी है, जी है, उसके बाद चेंज हुआ है एफ, एफ के बाद क्या है, एफ के बाद सी आएगा क्या, नहीं, देर इज नो चेंज। यहां पर चेंज हुआ है, यहाँ पे क्या है, ई, ई के बाद डी है क्या चेंज, नो, देर इज नो चेंज इन द डी। तो यहां पर चेंज नहीं है, तो हमें जाना पड़ेगा बी। ये देखिए यहाँ पे चेंज है 6 टू इंफिनिटी, यहाँ पे हमें मिला 2, तो यहाँ पे लिखिए बी। यहाँ पर भी चेंज है, यहाँ पर ए। नाउ दिस इज द पाथ, दैट इज, अब इसको थोड़ा सा मैं लिखूं प्रॉपरली, तो पाथ क्या बनेगा हमारा, उसको रिवर्स कर दीजिए, ए बी ई एफ जी, दिस इज द पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ए बी ई एफ एंड जी। कौन सा, ए टू बी टू ई, सॉरी मैं ये यूज करता हूं, बी टू ई एंड देन ई टू एफ, ई टू एफ, देन एफ टू जी। अब देखिए ये, और बाकी सारे मिटा देंगे हम। तो ये हमारा प्रॉपर पाथ है, ये हुआ हमारा स्पैनिंग ट्री। A to B, B to E, E to F, and F to G. So this is the path having the root A as a source and G is the destination. तो ये हमारा using the Dijkstra algorithm, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल, हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। या तो फिर आपने एल्गोरिथम में देखा है ये वाला मिनिमम, मिनिमम ऑफ डिस्टेंस v एंड डिस्टेंस u प्लस कॉस्ट ऑफ uv। फॉर एग्जाम्पल ये अगर है ऐसा, तो मिनिमम ऑफ डिस्टेंस, ये तो 0 है सपोज, ये इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, distance of v, this one v, this is u, distance of v and distance of u plus यहाँ पे सपोज कॉस्ट है 2, तो इसमें से मिनिमम कौन सा है, इंफिनिटी या फिर ये तो इनिशियलाइजेशन में 2 आएगा। अब यहाँ से ये लेना है हमें, तो मिनिमम ऑफ ये होगा v, मिनिमम ऑफ डिस्टेंस v, इसका कितना है, इंफिनिटी है। डिस्टेंस ऑफ u कितना है, जो ऑलरेडी विजिटेड था, ये है 2, प्लस कॉस्ट कितना है, सपोज यहाँ पे 3 है, 5, तो इसमें से ये 7, सॉरी ये 3, ये 5, तो ये यहाँ पे ये आपको मिलेगा द डिस्टेंस u टू दिस v। तो ये आपको देखना पड़ेगा प्रॉपरली पाथ और ये कॉस्ट डायस्ट्रा एल्गोरिथम के लिए, ठीक है। तो ये होमवर्क के लिए है।